राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान. We are currently doing Karma Yoga. We have reached the verse number 8. Today we'll try to cover verse number 8 and 9 of Karma Yoga in Gita. This session is more to understand the deeper meaning of the verse and not that much for chanting. For chanting, there are a lot of people who are doing a wonderful job, just like Pai Saab kar rahe hain, and a lot of support is there on YouTube, which can be listened to and followed. So we'll just chant and go to the deeper meaning. अभी सबसे पहले तो just to build the background, Shri Krishna has kind of convinced Arjun कि आप कर्म से बच नहीं सकते, राइट? कोई रास्ता नहीं है बच के निकलने का. कर्म तो चाहो ना चाहो होगा ही, है ना? तो अब अर्जुन जी को समझ आ ही गया है, हमें भी समझ आ गया है कि कर्म से तो मुक्ति नहीं है. तो हमने क्या सोचा कि हम कर्म कैसे करना है वो सीख लें. When we cannot escape action, it is best to learn how to do it right, right? So with this thought in our mind, let's enter chapter 3. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Tritiyodhyayah Karma Yogaha. Shri Bhagavan Uvacha. Niyatam Kuru Karma Tvam Karma Jyayo Ya Karmana Sharir Yatra Pichate Na Prasidhye Da Karmanaha. It's a beautiful verse, right? ये हमें बता रहे हैं. We'll just read it in English and Hindi first, and then we'll go forward. You perform your duty, right? You perform your duty, for action is superior to inaction. Even the maintenance of this body would not be possible for you by inaction, right? And in Hindi, what are they saying? Tu Shastra Vidhi se. Shastra Vidhi se is a very important word. Shastra Vidhi se kya hota hai? Randomly we cannot live our life. We feel that there is nothing mentioned in our scriptures, so we can live the life the way we want. Nahi. So when they are saying niyat kuru karma, तो they what are they saying? Specifying कि जो नियत कर्म होते हैं वो शास्त्र विधि से होते हैं. शास्त्र क्या है? These are our scriptures, the श्रुति, the स्मृतिज. इनने जैसे बोला है वैसे जीवन जीना है हमें, not based on our whims and fancies. तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, राइट? क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा. We had started this verse and then we realized नहीं, हमारी verse 7 में और भी बाकी है, तो we went back. So again we'll start this verse. And the beautiful thing is he's saying that there is, first we have understood that there is no escape from karma. But now he's saying, listen, even if there was escape, अगर एक बार मान भी लेके आप बच सकते हैं कर्म से, राइट? एक्शन से, पर isn't action better than inaction? कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है. हमारे दिमाग को, हमारे हाथों को सुकर्म करने में बिजी रखना चाहिए. We should always be busy doing selfless, loving actions in this world. So he's saying that there is no point being idle. There is no point wasting time. Whatever you have been destined to do, वो आपको करना है. So what they are doing over here is, in this verse, because नियत कर्म आया है, तो हमें ये भी समझना है कि अगर नियत कर्म क्या होता है, राइट? विहित कर्म क्या होता है और निषिद्ध कर्म क्या होता है, राइट? नहीं तो हमें नियत कर्म समझ नहीं आएगा. So what they start with is, they are starting with the explanation of these three types of karma. So let's understand first कि विहित कर्म क्या है, right?
विहित कर्म यहाँ पे लिखा हुआ है कि विहित कर्म इज बेस्ड ऑन all the punya karma, all the prayers and the oblations that we are doing. It could be fasting, it could be upvas, and fasting and upvas is not only by food, right? मौन रखना भी एक उपवास होता है, गलत चीज देखना भी एक, ना देखना भी एक उपवास होता है. Be very careful about what is going into our ears is also upvas, right? So vrat, upvas and upasana is when we are doing aradhana, when we are praying, when we are contemplating, when we are reading, all these things which are being done. Many a times we feel we are doing it this for God, पर प्रभु को हमारे व्रत उपवास से कोई फर्क नहीं पड़ना है. Why are we doing it? And we have clarified it in our previous discussions. It is to contain our mind. This monkey mind, it does not sit still. So व्रत से, उपवास से प्रभु को कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट हमें है, राइट? तो इनको बोलते हैं विहित कर्म. एंड विहित कर्म से क्या होता है? विहित कर्म से वी गेट अ लॉट ऑफ गुड मेरिट्स एंड पुण्य. आप यज्ञ करेंगे, यागादि करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, तो आपके कर्म शुद्ध होंगे. देयर वोंट बी एनी नेगेटिव वर्ड दैट विल कम आउट ऑफ योर माउथ इफ यू आर स्पीकिंग लेस. व्हेन यू आर ईटिंग नियमित तरह से, when you are eating with a lot of control, you are not going to intake negative things into your mouth while you are eating, drinking, right? In the way when you are speaking, these are some basic examples. You can elaborate it to a very detailed thing. When you are speaking also, when we are seeing also, so all these things help us incur less sins, right? So this is what is विहित कर्म. और ये विहित कर्म हम सबको करना चाहिए. ऐसा कोई भी नहीं है वो बोल सकता है कि मैं व्रत उपवास में नहीं मानता, राइट? कि जब मेरा जी चाहेगा मैं खाऊंगा, जब मेरा जी चाहेगा मैं पढ़ूंगा, जब मेरा जी चाहेगा तब मैं उठूंगा. नियम होते हैं इन सबके. इट इज ऑलवेज सेड, राइट? इवन वेकिंग अप, इट इज बेस्ट टू गेट अप बिफोर द सन राइजेस एंड डोंट स्लीप टू मच इनटू द नाइट, राइट? जल्दी उठोगे तो आप वैसे भी जल्दी सोगे. एंड देयर इज अ प्रोवर्ब दैट गोज ऑल्सो, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, राइट? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, कीप्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. ये सब बेसिक चीजें जो हम हमारे बच्चों को बहुत सिखाते हैं, पर हम खुद भूल जाते हैं. हम निश्चर थोड़ी हैं, कहते हैं ना निशाचर, जो रात को जगते हैं. नो पर्सनल एनीथिंग अगेंस्ट एनीबडी, बट दिस इज व्हाट द स्क्रिप्चर्स आर सेइंग. नाउ दीज आर विहित कर्म. देन दे गो ऑन टू निषिद्ध कर्म, या फिर आप बोल सकते हो द थिंग्स दैट वी शुड नॉट डू. दीज शुड बी डन, राइट? But if we don't do them, we are not sinning. But जो निषिद्ध कर्म होता है ना, something that we should not do with a capital and a underline, कि ये तो आपको नहीं करना है. जैसे कहते हैं ना, पर निंदा आपको नहीं करनी है, गॉसिप आपको नहीं करनी है, जेलसी आपके मन में नहीं होनी चाहिए, काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, अहंकार, लोभ, कुछ भी आपके मन में नहीं होना चाहिए. ये निषिद्ध है. किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी का मन आहत नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट हर्ट एनीबडी फिजिकली और मेंटली. कई बार होता है वी फील कि हर्टिंग और बीइंग वायलेंट इज ओनली फिजिकल. नो, फिजिकल स्कार्स भर जाते हैं. द मेंटल स्कार्स दैट वी लीव ऑन समबडीज माइंड एंड कॉन्फिडेंस टेक्स वेरी लॉन्ग टू बी फिल्ड, एंड कभी कभी वो कभी नहीं भरते. हम हाथ से मारेंगे ना, वो घाव भर जाएगा. जो जबान से हम घाव लगाते हैं ना, वो कई बार पूरी जिंदगी निकल जाती है, नहीं भरता. और जब वो दूसरा जन्म लेता है तब भी वो घाव रह जाता है. कई बार हम सोचते हैं ना कि बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर टॉकिंग. ये जब बोल रहे हैं ना निषिद्ध कर्म में अपशब्द बोलना, गलत चिल्ला के बोलना, किसी को भयभीत करना, यू नो, व्हेन यू स्केयर समबडी अननेसेसरली, व्हेन यू टैम्पर विद समबडीज कॉन्फिडेंस. जस्ट डोंट लुक एट द टेंजिबल एलिमेंट्स, लुक एट द इनटेंजिबल इफेक्ट्स ऑल्सो, राइट? हम लोग स्थूल देखते हैं, सूक्ष्म इफेक्ट भी देखिए आप. These two things come together. Unfortunately, आजकल हमने क्या कर लिया ना, लोग बोलते हैं ना, पहले हमारे वेदों में प्रभु का निराकार स्वरूप था. अब हमारी बुद्धि ऐसी हो गई है कि जब तक हम साकार विग्रह को नहीं देखते तब तक हमारा प्रभु में मन ही नहीं लगता. सो एवरीथिंग, कहते हैं ना, आजकल सब कुछ हमने पत्थर का बना लिया है. बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बस दिल पत्थर का मत बनाइए आप, वो निश्चित है। खुद का दिल आप पत्थर का बना लेंगे तो दूसरे के दिल को आप कितना आहत कर देंगे, सोचिए। So that is not allowed. So, we will take the big things of lying and gossiping, but many a times we forget कि निश्चित कर्म में हमारा सोच भी आ जाता है। कई बार हम लोगों को अपने सोच से आहत कर देते हैं, because when we are thinking negative about somebody, we transmit that vibration to that person, and unknowingly the momentum or the joy of that person diminishes, and कई बार हम बोलते हैं ना, पता नहीं आज ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर मन खुश नहीं है। किसने आपके बारे में क्या विचार करा, वो आपको जाके लगा और आपका मन उदास हो गया। मत करिए ऐसा, ये निश्चित कर्म है। और कहते हैं विहित कर्म नहीं करेंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, किंतु बट इफ यू आर डूइंग दिस निश्चित कर्म विच इज not supposed to be done, you will incur sin. There is no way out. Whether it is tangible or not tangible, स्थूल है या सूक्ष्म है, physical है या mental है. The minutest of this kind of karma, because we have already defined karma, right? Even breathing is karma, right? Because we had to clarify it, ताकि हम आगे समझ सकें कि कर्म की परिभाषा ही नहीं समझेंगे तो everything else will sound gibberish. So we have to understand what karma is first, right? And we did that. We took a lot of time. Now they are saying कि विहित कर्म आप भले ना करें, यज्ञ ना करें, व्रत ना करें, उपवास ना करें, उपासना ना करें, you won't incur sin. Yes, आपकी शुद्धि नहीं होगी, पुण्य अर्जन नहीं होगा, पर पाप नहीं लगेगा। किंतु ये जो निहित कर्म करते हैं ना, निश्चित कर्म, उनको करते ही आप पाप अर्जन करने लग जाते हैं, राइट? तो इनको तो बिल्कुल मत करिए, वो करे ना करे वो आपकी इच्छा है, राइट? सो गॉड इज सेइंग, बट नाउ ओवर हियर श्री कृष्ण इज टॉकिंग अबाउट समथिंग नियतम। व्हाट इज नियतम? आपने दो तो डिफाइन कर लिए, पर नियतम कर्म क्या है? नियत कर्म है मेरा स्वधर्म। What is my स्वधर्म? देखिए, हमारा जो बहुत बड़ा धर्म है ना, कहते हैं कि स्वधर्म इज अ लिटिल बिलो। आई वोंट से इट इज अ लिटिल बिलो, बट हमेशा कहते हैं ना, मेरा धर्म है मेरे सच्चिद आनंद स्वरूप में रहना, बिकॉज दैट इज माई आत्माज धर्म, राइट? आपका धर्म क्या है? आप तो आत्मा है ना। We have clarified this also over all the sessions कि you are not the body, you are not the mind, you are not the thought, you are not anything that is related to this body. आप कौन है? आप सच्चित आनंद आत्मा है। You are that pure energy, you are that pure soul. Everything else is an object. Everything else is other than you, right? आप क्या है? So my dharma, when I am saying my, when it is coming to the आत्मा स्वरूप, मेरा धर्म क्या है? मेरे सच्चिद आनंद स्वरूप में रहना, ठीक है? एंड अगर आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां पे तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि आपके साथ आत्मसात हो जाता है, इट बिकम्स वन विथ यू, यू आर लिविंग इन इट, देन नथिंग अप्लाइज टू यू। द कर्म फिलोसफी वोंट इवन अप्लाई टू यू, राइट? आप सच्चिद आनंद स्वरूप में स्थित हो गए, फिर तो क्या फर्क पड़ता है? आप तो उससे परे हो गए ना। देखिए, सत्व रजस तमस, जब तक आप इन तीन अवस्था में हैं तब तक ऑल दिस अप्लाइज टू यू, बट आप जब गुणातीत अवस्था में पहुंच जाते हैं तो दैट नथिंग अप्लाइज टू यू। गुणातीत अवस्था भी तो होती है ना, जहां पे सत्व नहीं होता, रजस भी नहीं होता और तमस भी नहीं होता। गुणातीत अवस्था होती है जिसमें कोई गुण ही नहीं होते। वो अवस्था में है क्या आप? नहीं ना, भी हो भी सकते हैं, वी नेवर नो, राइट? और कहते हैं कि हम उस अवस्था में दिन में एक बार तो पहुंचते ही हैं, बट द प्रॉब्लम है हम उसको होल्ड नहीं कर पाते, है ना? ऑसिलेशन चलता है, सत्व रजस तमस, एंड कभी ना कभी हम गुणातीत अवस्था को भी छू लेते हैं, फिर वापस नीचे आ जाते हैं, राइट? कितना ऑसिलेट करते हैं हम लोग। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जब आप गुणातीत अवस्था में हैं, राइट, तो तब आपका स्वरूप क्या है? अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। तब आप क्या है? एक सच्चिद आनंद स्वरूप है। तो आप इन सारी चीजों से परे हैं। तब फिर विवेकानंद जब बोलते हैं ना, वो उन पे अप्लाई करता है, लाइफ इज बट अ ड्रीम, ये एक स्वप्न है, छोड़ो ना, कर्म कर्म क्यों रोते हो? लाइफ इज बट अ ड्रीम, लेट द विजन सीज। इफ यू कैन नॉट, बहुत मुश्किल है ना ये कहना कि ये सब स्वप्न है, बाकी कुछ भी नहीं है। इफ यू कैन नॉट
इन्वेस्ट योर लाइफ इन सेल्फलेस लव एंड सर्विस फ्री। ठीक है, तो अब हम बात करें स्वधर्म की। धर्म की बात नहीं कर रहे, स्वधर्म की बात कर रहे हैं। और स्वधर्म है हमारा नियत कर्म। तो क्या बोल रहे हैं प्रभु? नियतम कुरु कर्मत्वम। जो तुम्हारा नियत कर्म है वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो जब प्रभु हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ओवर हियर श्री कृष्ण इज नॉट गिविंग अस एन ऑप्शन, ही इज टेलिंग अस, ही इज गिविंग अस एन ऑर्डर कि तुम्हारा नियत कर्म तुम्हें करना है। सो व्हाट इज नियत कर्म? वर्ण के हिसाब से, आश्रम के हिसाब से। वर्ण में आप जो भी हैं, देखिए वर्ण जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। लेट अस क्लैरिफाई इट, बिकॉज बहुत चीजें अपशब्द और हमारे धर्म के बारे में बोला गया है कि कास्टिज्म एंड ये, और कास्ट एंड वर्ण में बहुत फर्क है जो हम इंग्लिश में कई बार नहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो हमारे ग्रंथ देवनागरी में लिखी हुई और हिंदी में या संस्कृत में हमें बताना चाह रहे हैं, या हमारे कोई भी लोकल डायलेक्ट में बताना चाह रहे हैं, वो अंग्रेजी में बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वर्ण, इसी के लिए वर्ण बोलेंगे हम, कास्ट नहीं बोलेंगे। वर्ण के हिसाब से आपका क्या धर्म है। आश्रम, आप किस आश्रम में है? देखिए वो तो हमारी चॉइस है कि हम गृहस्थ आश्रम मरते दम तक नहीं छोड़ना चाहते, बट है तो 4 आश्रम ना, राइट। तो इसमें बोला है कि आपके आश्रम के हिसाब से। हम लोग तो क्या है, ब्रह्मचारी आश्रम में भी पूरे स्थित नहीं रहते हैं। कौन सा बच्चा ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है, आप ये मुझे बता दीजिए आज की तारीख में। पेरेंट्स हैव गॉन टू सच एन एक्सटेंट कि जो हमें नहीं मिला वो सब हमारे बच्चे को मिल जाए। ब्रह्मचर्य आश्रम के नियम होते हैं, वेयर यू आर फ्रूगल, द चाइल्ड स्टडीज, द चाइल्ड हैज अ लिटिल पोजेशन, द चाइल्ड फोकस ऑन सर्टन थिंग्स। ब्रह्मचारी आश्रम में इट इज बीइंग अवे फ्रॉम सेंसलेस वांट्स एंड डिजायर्स ऑफ एनी काइंड। पर हम तो अपने बच्चे को बोलते ले लो, जो मुझे नहीं मिला भगवान तुम्हें दे दें। अगर मेरे पास में 2 कपड़े थे जब मैं बड़ा हो रहा था, कई बार हम लोग सुनते हैं ना, आई रियली लिसन टू द स्टोरीज व्हेन माय फादर टेल्स मी कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था और हमारे पिताजी आए थे तो हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा था। वी हैड सो मच, एवरीथिंग गॉट फिनिश्ड। व्हेन ही वाज डूइंग CA, ही डिड नॉट हैव मनी टू पुट इन हिज मिल्क टू पुट इन हिज टी। दैट वाज द स्टेट ही वाज इन एट दैट टाइम. And then he really, really worked hard to come up and give us a beautiful life, right? But कई बार क्या होता है, because of the deprivation that the parent has gone through, they forget that they are not supposed to spoil their children. आपने तो अच्छा ब्रह्मचर्य आश्रम जी लिया, आपके कपड़े 2-3 ही थे, है ना? आपके पास में बहुत लिमिटेड खाने को था, आप लोग मेहनत करते थे, साइकिल चलाते थे। वो बोलते ना, जब मैं मेरा शर्ट निचोड़ता था, साइकिल चला के ट्यूशन लेने जाता था, और जब मैं मेरा शर्ट निचोड़ता था, उनके लैंग्वेज में बोलते हैं धोबा भर जाता था पसीने से, गर्मी में, जोधपुर की गर्मी में। तो आपने तो श्रम कर लिया, बच्चों को क्यों वंचित रखा? वट एवर यू आर, जो आपने आसमान आज छुआ है, आपकी जो रेजिलियंस है, बिकॉज ऑफ द टफ टाइम्स। ऑलवेज रिमेंबर, अ श्रब, अगर छोटा सा पेड़ है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा घना पेड़ है, वो सोचता है कि मैं इसको छाया दे रहा हूँ, वो भूल जाता है कि मैं सूरज की किरण को इसके तक नहीं पहुंचने दे रहा हूँ, इसका विकास नहीं होगा। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रह्मचर्य आश्रम, व्हेन वी टॉक अबाउट गृहस्थ आश्रम, देयर आर रूल्स, राइट? सो ब्रह्मचर्य आश्रम में हम हमारे बच्चों को, शायद हम भी नहीं रहे हैं। सो व्हाट दे आर सेइंग इज, एज पर the mentioned thing, niyat, कर्म, which ashram you are in. And क्या होता है गृहस्थ आश्रम में? when your responsibilities have been fulfilled, what do you do? वानप्रस्थ की तरफ बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं? बहुत कम लोग बढ़ते हैं। देखिए, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम का मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ के भाग जाएं। आजकल मजाक में तो हम बोलते हैं कि जंगल बचे ही कहाँ हैं, जाएंगे कहाँ, काट दिया हमने तो सब, राइट? और काटे जा रहे हैं हम। पहले जमाने में आई रिमेम्बर दैट फर्नीचर एक बार जो खरीद लिया वो पूरी जिंदगी चलता था, राइट? ऐसा नहीं होता था कि आज सोफा खरीदा है, 4 दिन बाद हम बोर हो गए हैं, 2 साल में, हर 2 साल में हम तो सोफा बदल लेते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि सोफा तो आप बदल रहे हैं, पर लकड़ी कितनी काट रहे हैं। थोड़ा सा तो सोचिए ना, थोड़ा तो सोचिए। तो हमने क्या लास्ट वीक पढ़ा था ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है? भूत,
भूतों का भी ऋण है। भूत कौन है? जो जीव जंतु पेड़ पौधे, वो हम भूल जाते हैं ऋण। 4 साल में बोर हो गए, नई डिजाइन आ गई, बदल लो। क्यों? इतने हम सेल्फिश हो गए, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, हमें याद ही नहीं रहता कि हमारी इच्छा पूर्ति के लिए हम किसका नुकसान कर रहे हैं। और पेड़ काट रहे हैं, सृष्टि का नुकसान कर रहे हैं। नुकसान तो हमारा भी हो रहा है। वी आर डिप्राइविंग द फ्यूचर, वी आर डिप्राइविंग द चिल्ड्रन of a bright future by eradicating and cutting off all the forests. This is just one small example. So when we are reading Gita, it is very deep. We have to think like this to understand what the verses are saying. So वो बोल रहे हैं कि नियत कर्म तो आपके आश्रम के हिसाब से, कहते हैं ना जो राजे महाराजा थे, once their responsibility was done कि now my child is ready, he can rule the kingdom, वो छोड़ छाड़ के वानप्रस्थ की तरफ निकल जाते थे और उसके बाद में संन्यास ले लेते थे। हम तो क्या है, संसार छोड़ ही नहीं पाते। मोह है ना, मोह क्या, डिल्यूशन, ममता का भाव। अब अभी बच्चे बड़े हो गए, अब हमें ग्रैंड चिल्ड्रन को बड़ा करना है, अब उनकी शादियां देखनी है। एंड देन वी से दैट पीपल डोंट लाइक आवर इंटरफेरेंस बिकॉज यू आर नॉट नीडेड, दे नो व्हाट टू डू नाउ। आपने तैयार कर दिया ना, संस्कार भरने का समय था, राय देने का समय था, सही मार्गदर्शन करने का समय था, अब नहीं है। जब आप वानप्रस्थ की तरफ जा रहे हैं, कहते हैं ना टिल द एज ऑफ 13-14 योर वर्क शुड बी डन। मेहनत करिए, उसमें सब संस्कार भर दीजिए ताकि 20, 21, 22, 25 साल में आपको उनको सुमार्ग नहीं दिखाना पड़े। तो वो बोल रहे हैं कि आश्रम के अनुसार तो 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो बेस्ड ऑन विच आश्रम यू आर इन, आपको नियत कर्म करना पड़ेगा, राइट। एंड देन स्वभाव एवं परिस्थिति, सिचुएशन। नाउ आई एम अ मदर, आई हैव बीन प्लेस्ड एज अ मदर इन दिस फैमिली, आई एम अ डॉटर इन लॉ ऑल्सो, आई एम अ वाइफ ऑल्सो, आई एम अ सिस्टर ऑल्सो। मेरा ये धर्म है, इट इज माई ड्यूटी। See, charity, everything starts at home. You cannot negate the duty you have. And हम कहते हैं ना, नहीं नहीं कुछ भी हो जाए, खाना बने नहीं बने, हम तो कथा सुनने जाएंगे। मत जाओ। घर में बूढ़ा बुजुर्ग भूखा बैठा है और आप कथा में जा रहे हैं, फायदा क्या? Your duty is towards, and wherever you are, you can see that divine in them, right? You can see divinity in each and everybody, because हम तो नमस्ते भी करते ही है ना। What do we do? नमस्ते, हम नमस्ते करते हैं ना। आजकल हाय हेलो में परिवर्तित हो गया है, नहीं तो जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, हरि ओम बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं। आई एम बाउइंग माई हेड टू दैट डिविनिटी इन यू। जब हम जय श्री राम बोल रहे हैं तो हम आपके अंदर के राम को जय श्री राम बोल रहे हैं। जय श्री कृष्ण, वी आर एक्नॉलेजिंग कि हम दोनों में श्री कृष्ण है। नमस्ते, I am doing naman to the divinity in you. I see that divinity in you. So when there is divinity in everybody, कहाँ भाग रहे हो? अपना धर्म छोड़ के भाग रहे हो? हाँ, आप धर्म करिए, फिर जाइए, कोई रोकता नहीं है। My mother always used to say, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। And I still remember, from the very time from the time when I was a child, to the time when I was in the corporate working in Coke, to the time when I am here right now, she always say पुरुषार्थ करो, कम सो, टीवी मत देखो। So she is saying remove the things which are not necessary. नींद निद्रा पे कंट्रोल करो ना। 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे से ज्यादा की नींद शायद हमें नहीं चाहिए अब, राइट। आलस्य त्यागो। एंड माई दादी माँ ऑलवेज यूज्ड टू से, वो लोग तो फिल्में बना बना के बहुत पैसे कमा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो देख देख के। So बड़े बड़े लोग बोल जाते हैं, मजाक में बोलते हैं। अभी हम लोग सोचते हैं तो लगता है कि हाँ सही बोल रहे थे कि 3 घंटे में उनने तो अरबों करोड़ों कमा लिए, हमने क्या करा, हमने तो हमारे 3 घंटे गवा दिए। पुरुषार्थ रखो, पुरुषार्थ रखो, पुरुषार्थ रखो, चेत करो, चेत करो, चेत करो, जागो। तो दिस इज व्हाट। तो नियत कर्म हम बोले समय नहीं, समय सब करने का है, हम उसको व्यर्थ गवा देते हैं। सिट डाउन, प्रायोरिटाइज कि आज मुझे क्या करना है, राइट। प्रायोरिटाइज करेंगे तो हम बहुत ध्यान रखेंगे। देखिए, हम पैसा खर्च करने से पहले बहुत सोचते हैं, समय खर्च करने से पहले सोचते हैं क्या? बी वेरी स्टिंजी व्हेन इट कम्स टू योर टाइम, बी वेरी जेनरस व्हेन इट कम्स टू मनी, स्पेंड इट वेयर नीडेड,
टाइम भी स्पेंड इट व्हेन नीडेड, बट व्यर्थ मत गवाओ दोनों चीजों को. सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कि आप जिस सिचुएशन में हैं, इफ यू आर अ मदर, यू आर अ फादर, डोंट फॉरगेट योर ड्यूटीज. ऐसा नहीं कि टुडे सडनली मेरे में वैराग्य जाग गया है, सो फ्रॉम नाउ ऑन आई वोंट गो टू द ऑफिस, आई वोंट डू एनी वर्क, आई एम गोइंग टू द जंगल्स. तो फिर बच्चों का क्या? हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी आर दे? वैराग्य तो आप वैरागी घर में रह के भी रह सकते हैं ना, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम कर्म, इट इज नॉट द एक्शन, इट इज द इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन दैट मैटर्स, राइट? तो हमने बहुत उसमें डिटेल में बात करी. तो ये वापस बोल रहे हैं कि जो नियत कर्म होते हैं, इट इज बेस्ड ऑन योर सिचुएशन, बेस्ड ऑन व्हाट इज इन डिमांड, स्वधर्म, राइट? इट इज स्वधर्म. आपका धर्म क्या है? नाउ अर्जुन इज अ क्षत्रिय. He is not a sannyasi right now. He is not at that stage. He is fighting for the greater good. And now he says कि मुझे 5 गांव नहीं चाहिए. तो कृष्ण उसको बोलते हैं, देखो अर्जुन, 5 गांव की तो कभी बात नहीं थी भाई. ये तो धर्म युद्ध है. तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है लड़ने का. एंड तुम्हारा धर्म है एज अ क्षत्रिय टू फाइट एंड प्रोटेक्ट एवरीबडी. एंड एज अ ह्यूमन इट इज योर धर्म टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस. धर्म की लड़ाई छोड़ के कहां जाओगे तुम? हाउ डिड यू मेक इट योर सेल्फिश 5 गांव का युद्ध? किसने बोला ये 5 गांव का युद्ध है? राइट? सो अर्जुन को जब व्हेन ही वाज विलिंग टू रन अवे, बोले नहीं, तुम अपना नियत कर्म छोड़ के नहीं जाओगे. नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो या कर्मणः. तुम्हारा नियत कर्म करो. इन एक्शन इज यूजलेस. दिस इज अ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम श्री कृष्ण व्हेन ही स्टार्ट्स नाउ विथ कर्म योग अगेन. तो वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा क्या ड्यूटी है. आई हैव टू फुलफिल माई ड्यूटी, अदरवाइज आई एम एन एस्केपिस्ट. There is a very thin line of difference between being an escapist and ask. We have talked last time also. Am I using my ability to its fullest potential or am I wasting my time? क्या मैं ये 24 घंटे में वाकई सुकर्म कर रही हूं? It does not have to be with money. It could be with your time. It could be with your energies. Maybe you could go and teach somebody. 24 hours, 24 घंटे भगवान ने हमें दिए. तन मन धन से हमें सेवा करनी है, राइट? क्या हम कर रहे हैं? हम कितना समय व्यर्थ? मे बी वी शुड मेक अ टाइम टेबल नाउ, सो दैट वी नो कि हम अपना स्वधर्म ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. And we talked about Swadharm last week when we elaborated it beyond our own families and the 4 people who are living with us. आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज भी हो गई हैं. तो अदर देन द 3 या 2.5, 3, 4 लोग जो हमारे साथ रह रहे हैं, उनके अलावा हम किसी का सोचते ही नहीं है. तो we talked about ऋण्स, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, मनुष्य ऋण एंड भूत ऋण, राइट? Which is our responsibility. And for the Grihastha ashram, additional responsibility of Brahmacharya ashram, Vanaprasthi ashram and Sannyas ashram. Suddenly there is so much responsibility and हम आराम से बैठे हैं कि my children are settled so I can enjoy. ये सारा संसार हमारा है, ये हमारा कुटुंब है. जब तक एक एक बच्चा भूखा है, तब तक हम ऐसे आराम से कैसे बैठ सकते हैं? सोचिए ना. So that is what he's saying कि नियत कर्म तो आपको करने पड़ेंगे, right? Very simply put, Shri Krishna has said, and he said वैसे भी, if come to think of it, हाथ नहीं हिलाओगे तो खाओगे कैसे? बाहर नहीं जाओगे तो कमाओगे और खाओगे कैसे? You will not, if you don't go to the bathroom and take a bath, you will be dirty. It's as simple as that, because those are also karms. So he is saying, शरीर का ध्यान, इस शरीर का भी हम क्या ध्यान रख सकेंगे अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो? ये जो शरीर जिसको मैं माई मोस्ट प्रेशियस पोजेशन, वी अडोर एंड अडोर्न इट ऑल्सो सो मच, इसका भी क्या ध्यान रख पाएंगे हम बिना कर्म करें? कि हम एक जगह बस बैठना भी एक कर्म है, सांस लेना भी एक कर्म है. तो आप अपने शरीर को भी संभाल के नहीं रख सकते. सो ब्यूटिफुली ही इज टेलिंग अस, ही इज इंस्ट्रक्टिंग अस. कहते हैं ना, अराइज, अवेकन एंड डोंट स्टॉप till you reach your goal. And स्वधर्म में सबसे बड़ा गोल आता है, जब तक समस्त लोग सुखी ना हो जाए तब तक मेरी ड्यूटी खत्म नहीं होती. समस्त लोग, increase your horizon, increase your heart,
एक्सपैंड योर हार्ट, सबको भीतर लीजिए, तब देखना शांत, निठल्ले ठाले बोलते हैं ना, बैठ ही नहीं पाएंगे हम, राइट? तो नाउ व्हाट इज ही सेइंग? राम सुखदास जी ये भी बोलते हैं, स्वरूप से कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा, स्वरूप से कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा, नाउ ही सेइंग कि फिजिकली एवरीथिंग नाउअडेज हैज बिकम वेरी आउटवर्डली, राइट? कि हम सब इट्स ऑल फिजिकली बेस्ड. सो हम बोले कि स्वरूप से फिजिकली कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कर्म करते हुए ही कर्मों से संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है. हमने कर्म समझ लिया, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है समझ लिया, तो अब ये बोल रहे हैं लेट्स टेक इट अ स्टेप फर्दर. डोंट वरी कि मैं what are we are worried about, at least the person who's on a spiritual path is कि मुझे कर्म बंधन नहीं बांधने, राइट? मुझे कर्म बंधन नहीं बांधने, मुझे कर्म बंधन नहीं बांधने, मुझे एटलीस्ट मैं तो बोलती मुझे पुनर्जीवन नहीं चाहिए, पुनर्जन्म चाहिए ही नहीं, मुझे प्रभु आना ही नहीं है वापस, खत्म करो काम. तो कई बार होता है ना, व्हेन यू गो टू समबडीज हाउस ऑल्सो यू शुड बी वेरी माइंडफुल कि भाई नहीं, एक गिलास पानी आपसे पी लिया तो शायद अगले जन्म पानी लौटाने आना पड़ेगा, मत दो. 1 रुपया आपसे ले लिया तो शायद इस 1 रुपये के लिए वापस जन्म लेके आना पड़ेगा, मुझे मत चाहिए, मत दो. किसी से कुछ मत लो, हिसाब किताब क्लियर रखिए आप, नहीं तो वो 1 अठन्नी लौटाने के लिए आना पड़ जाएगा. इतना ध्यान रखने वाली बात है, मतलब सच में कई बार सोचें तो लगता है कि कितना सोचें. सो ये बोल रहे हैं स्वरूप से कर्म, मतलब डोंट लीव व्हाट यू आर डूइंग, आपका ड्यूटी जो है आपको करना है, बट द एस्केप इज सो दैट देयर इज नो कर्म बंधन, संबंध किसे कर्मों से संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है. कैसे? कि योर एटीट्यूड एंड इंटेंशन, ये जो मैं कर्म कर रहा हूं वो छोड़ दीजिए, कर्म हो रहा है वो सोच लीजिए, राइट? ये मैं जो है ना, मैं हटा लीजिए उसमें से. कर्म हो रहा है, मैं सिर्फ निमित्त हूं, कोई और करा रहा है. नहीं तो हमारे में तो मैं आ जाता है ना, मैंने ये करा, मैंने वो करा, कई बार मुंह से निकल आता है मैंने ये बिल्ड करके रखा. तुमने कहाँ करा? हमारी में हमारी इतनी भी क्षमता नहीं है कि हम एक पत्ता हिला लें प्रभु की इच्छा के बिना. हिला के दिखा लीजिए ना, हवा चलेगी तो पत्ता हिलेगा, नहीं तो क्या हवा चला सकते हैं आप? नहीं. तो हम करने वाले कौन है? दिस रियलाइजेशन हैज टू रिमेन इन आवर माइंड कि आई एम नॉट द डूअर. मैं ना तो करता हूं ना मैं भोगता हूं. तो आप संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है, कारण कि कामना, वासना है ना, फल आसक्ति, पक्षपात आदि ही कर्म से संबंध जोड़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दे सेइंग इज कामना, डिजायर टू गेट रिकग्निशन, टू एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, और कुछ नहीं तो चलो लोग बोल देंगे देखो मैंने बड़े मन से खाना बनाया है. इतना तो बोल सकते थे ना कि खाना अच्छा बना है. ये छोटी सी डिजायर तो डिजायर ही होती है ना, छोटी. देखिए झूठ छोटा हो या बड़ा हो, झूठ झूठी होता है. डिजायर छोटी हो या बड़ी हो, डिजायर ही होती है. मेरी कहाँ बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, मेरी छोटी सी तो इच्छा है, मैं कुछ करूं तो तारीफ कर दिया करो. मैं और क्या मांगती हूं आपसे? मांग तो मांग ही होती है ना. कामना, डिजायर, वासना, अगेन लस्ट, ऑल दैट, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वेरी तीव्र डिजायर. फल आशा, where we want results. When we have actually made, everybody has been conditioned to become result oriented, right? हमारे को भगवान, आप देखेंगे आजकल, आप ग्रंथों में देखिएगा, और जो बहुत चैंटिंग करते हैं उनको पता है कि आफ्टर द एंटायर चैंट फलश्रुति आती है, क्योंकि फलश्रुति हर जगह लिखी होती है. आप ये चैंटिंग करोगे तो आपको ये मिलेगा, क्योंकि प्रभु को और हमारे गुरुओं को समझ आ गया कि इस मनुष्य को अगर मैंने इसका बेनिफिट नहीं बताया कि इससे इसको क्या लाभ होगा, तो ये करेगा ही नहीं. तो चलो ठीक है, लाभ के लिए करे, पर करे तो सही कि हाँ, लक्ष्मी सहस्त्र नाम करो, विष्णु सहस्त्र नाम करोगे तो आपको ये फल मिलेगा, लक्ष्मी जी के अष्टकम करोगे तो आपको ये फल मिलेगा, अविनायक जी के अष्टकम करोगे तो आपको ये फल मिलेगा. तो कम से कम ये मूड फल की इच्छा से तो करेगा ना, क्योंकि फल की इच्छा के बिना तो हम करते ही नहीं. व्हेन देयर इज नो बेनिफिट, व्हेन देयर इज नो रिजल्ट, व्हेन देयर इज नो use, then there is no use to do something. कृष्ण भगवान ने एक बहुत प्यारी सी, आई डोंट नो इट इज हाउ रेलेवेंट इट इज, बट इट इज जस्ट कमिंग टू माई माइंड कि आई थिंक सुदामा जी और कृष्ण भगवान के
बीच में ये बात हो रही थी, है ना, मैं भूल भी रही हूँ थोड़ी पर तो उन्होंने बोला कि हमारी दोस्ती, राइट, व्हाट इज द, हमारी दोस्ती का महत्व क्या है, या व्हाट इज द बेनिफिट फॉर आर दोस्ती, है ना। तो उनने बोला था जहाँ पे बेनिफिट या फिर महत्व या फिर कारण होता है ना, वहाँ दोस्ती नहीं होती है, राइट। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। हमें लगता है कि सबसे निस्वार्थ भाव से जो सेवा करती है वो माँ होती है, किंतु हमारे शास्त्रों में कहती है माँ के प्यार में भी स्वार्थ होता है। अगर आप और कोई होते, किसी और के बच्चे होते, तो क्या वही माँ आपको इतना प्यार करती? क्या माँ आपको इतना प्यार करती है क्योंकि आप उसके बच्चे हो। मेरा बेटा है इसके लिए मुझे प्यारा है। यही नाम, यही स्वरूप, यही स्वभाव अगर किसी और का बेटा होता क्या तो आपको इतना प्यारा लगता? तो माँ के प्यार में ही स्वार्थ है, तो बाकी सब चीजों में तो होगा ही ना। तो क्या बोल रहे हैं, फल इच्छा से मत करो, किसी स्वार्थ से मत करो। हम बच्चों को जब बड़ा करते हैं हम ये सोच के ना करें कि हमारे बुढ़ापे में ये हमारे काम आएंगे। नहीं, बच्चों को बड़ा करिए ये सोच के कि तुम पीछे मुड़ के भले ना देखो, संसार के जरूर काम आना, है ना। जीजाबाई ने शिवाजी को जब बड़ा करा था तब देश के लिए बड़ा करा था बेटा, कि अपना मत सोचना, मेरा मत सोचना, हमारे देश को कभी नीचे मत जाने देना। ये नहीं सोच के करा था कि ये मेरे को संभालेगा, उसने ये सोच के बड़ा करा था कि ये आगे जाके मेरे देश को संभालेगा। माँ के भाव को भी हम निस्वार्थ कर सकते हैं, राइट। पक्षपात, आंट वी वेरी बायस्ड ऑल द टाइम? सोचिए ना, पक्षपात, वी आर वेरी बायस्ड इन वट एवर वी डू, एनी एक्शन विच इज डन, जो हमें बहुत अच्छा है उसके प्रति हमारा एक्शन, और जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है उसके प्रति हमारे एक्शन में बहुत फर्क होता है। पक्षपात, बायसेस आर देयर इन अस, कूट 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 के भरे हुए हैं। तो नाउ व्हाट इज ही सेइंग सो ब्यूटिफुली, ही हैज सेड कि संबंध विच्छेद करना, ब्रेक द बॉन्डेज ऑफ कर्म। हाउ? बाय लीव, यू कैन डू द एक्शन without having any kamna, without having any vasana, without having any phal asakti, without having any pakshapat, and adi hi kamna se, these are the things which bind us to our action and karma, right? और अगर हम इन सब को हटा दें और संसार में हम केवल एक बांसुरी के तरह बजने लगे, तो क्या हमारे को कर्म बांधेगा? एक बार श्री कृष्ण बड़े परेशान, है ना, उनके मुंह पे मोस्टली हंसी ही रहती थी। यूज्ड टू बी वेरी चंचल। कल ही हम बोल रहे थे ना कि श्री कृष्ण की गीता बड़ी लंबी है, राम की विभीषण गीता बड़ी छोटी है। कृष्ण वॉज अ मैन ऑफ मेनी वर्ड्स, राम वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। जो भी है, तो कृष्ण एक दिन परेशान, जो कभी होते नहीं थे, एंड इधर उधर ही वॉज रोमिंग अराउंड, ही वॉज लुकिंग फॉर समथिंग इन द गार्डन बट ही कुड नॉट फाइंड इट, एंड फाइनली ही केम to a bamboo tree and he said, I need your help. All the plants said, why him? Why not me? आप मेरे पास आते, गुलाब ने बोला, आप मेरे पास आते, सनफ्लावर ने बोला आप मेरे पास आते, उसके पास ही गए, वो तो बैम्बू है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। पर प्रभु ने बोला नहीं, मुझे तो इसी से मदद चाहिए, पर तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। देखिए, हाँ, कर्म से संबंध विच्छेद करने में तकलीफ होगी। अब क्यों होगी आप सोचिए। You will feel so much of pain. It will hurt you. Are you sure you are ready for this? The bamboo said, I am ready for anything you want, Shri Krishna. मेरा जन्म ही आपका कार्य करवाने के लिए हुआ है, आपकी सेवा के लिए हुआ है, आपकी भक्ति के लिए हुआ। आप बोलो तो सही, कोई भी दर्द होगा मैं सहन कर लूंगा, है ना। तो बोला ठीक है, सोच लो। बोला हाँ। तो what he did is, Shri Krishna took the bamboo and he started cutting it. He cut it and he started scraping it from within. देखिए, अंदर से सारा, कहते हैं ना, तमस और रजस ही नहीं, सत्व का भी त्याग करना पड़ेगा हमें। तो अंदर से वो कुरेदने लगे, साफ करने लगे। उसकी आंखों से आंसू आ गए कि प्रभु इतना दर्द, पर वो चुप रहा क्योंकि उसने बोला था प्रभु आपको जो करना है करिए, आई फुल फेथ इन यू। तो कुरेदने लगे। कभी तकलीफें आए ना तो यही सोचना कि कृष्ण हमारी सफाई कर रहे हैं किसी बड़े काम के लिए। तो कुरेदने लगे एकदम, टिल इट बिकेम हॉलो। हॉलो कैसे होंगे हम?
See, we feel कि leaving sattva, tamas is, that anger and, jealousy and hurting somebody. It is just a small definition. It's a very big definition. You can take it into food and everything also. But tamas छोड़ दिया, rajas छोड़ दिया. Rajas is like, that having so much and किसी का harm नहीं करे बिना अपने लिए अर्जित करना सब कुछ इकट्ठा करना. तमस में we end up harming and somebody for our benefit. Rajas में we benefit and we hoard and we do so much. Even a food which is so spicy with a lot of ghee and tel is rajasic food. So, and tamasic food is different. So, वो सब करके आपने बोला now I am not tamasic, I am not rajasic, all I have is sattvic tendencies in me. तो प्रभु बोल रहे हैं कुरेदते समय वो सत्व भी बोलेंगे छोड़ो इसको. A very simple example is suppose आपके है ना एक थॉर्न घुस गया अंदर, नीडल या बांस घुस गया, हमारे सबके घुसा है कभी ना कभी तो, एंड नाउ इट इज इनसाइड. सो व्हाट विल यू डू? यू विल टेक अ नीडल टू रिमूव दैट बांस, राइट? उसको थॉर्न को या निकालने के लिए हमने नीडल से हम धीरे धीरे उसको निकालेंगे, राइट? सो दिस थॉर्न इज सत्व, इज रजस एंड तमस. तो हमने सत्व की हेल्प से उसको, सात्विक टेंडेंसीज की हेल्प से रजस एंड तमस को तो हटा दिया. अब मैं सोचो आप कि मैं इस नीडल को ऐसे हाथ में लेके घूमूं बस कि अरे इसने मेरी इतनी मदद की, इससे मेरा सत्व रजस एंड तमस हट गया, अब मैं इसको कभी नीचे नहीं रखूंगी, अब मैं हाथ में ही लेके घूमूंगी, सबको दिखाऊंगी. अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना. जब उसका काम हो गया तब हम उसको भी ड्रॉअर में जहां उसकी जगह है वहां रख देते हैं. तभी तो आप गुणातीत अवस्था में पहुंचेंगे ना. तो प्रॉब्लम क्या होती है? रजस एंड तमस तो हमारे से हट जाता है, सत्व नहीं छूटता. एंड द सात्विक ईगो इज द बिगेस्ट ईगो, इज द हेवीएस्ट ईगो, एंड इट इज एन ईगो और इट इज समथिंग दैट वी डोंट इवन कंसिडर बैड. कि हमारे में सत्व गुण ही तो है. नहीं, सत्व गुण भी छोड़ना है आपको. क्यों? ऐसा नहीं कि यू हैव टू बिकम नथिंग. तो वो कुरेद रहे हैं, साफ कर रहे हैं, फाइनली इट हैज बिकम हॉलो, कुछ भी नहीं बचा. फिर ऊपर से उनने होल्स बनाए, शेप दिया, बहुत दर्द हुआ, और फिर फाइनली प्रभु ने उसको अपने होठ से लगा लिया. और जब प्रभु ये सब कर रहे थे, कृष्ण के भी आंखों से आंसू टपक रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि इसको कष्ट हो रहा है. रोए जा रहे थे, श्री कृष्ण भी कार्य करे जा रहे थे, रोए जा रहे थे. और फिर जब सारा कार्य हो गया, उस बांस के टुकड़े को उनने बांसुरी बना दिया, एंड उस बांसुरी को अपने होठों से लगा लिया. कृष्ण किसी भी चीज के बिना रह सकते हैं, पर अपनी बांसुरी के बिना नहीं रह सकते. हमें इस संसार में एक बांसुरी की तरह रहना है, लाइक अ फ्लूट इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड. अंदर कुछ भी नहीं है, मैं तो खोखला हूं. When you blow the air, the music comes out. हवा भी तुम्हारी, गीत भी तुम्हारा. तब क्या होगा? संबंध विच्छेद हो जाएगा कर्म से. एंड दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग अस. संबंध विच्छेद करो, उस फ्लूट की तरह बन जाओ, कृष्ण की बांसुरी की तरह. एंड दैट इज व्हाट विल हेल्प अस लीव द बॉन्डेज. नॉट लीविंग एक्शन, but the intent with which we are doing the action, the subtle thoughts that go behind the action. It is not the action which is bad or good. It is how we, with what mentality, with what mental disposition we are doing the action, it makes it good or bad. Right? तो ये कहते हैं, and what is he saying is, कामना आदि के त्याग का उद्देश्य रखकर कर्म योग का आचरण करने से कामना आदि का त्याग बड़ी सुगमता से हो जाता है. With this thought in our mind, when we are doing our karma, slowly and steadily, these desires will vanish. होगा, समय लगेगा. It is not as easy as it sounds. But nobody said it is easy. कहते हैं ना, this path is not for the cowards. ये आग का दरिया है और डूब के जाना है. ये आग का दरिया है और डूब के जाना है. This is what spirituality is. हमें क्या लगता है कि spirituality is a path for cowards? No. And कर्म योग बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है. So what he is saying over here is,
निष्काम भाव से कर्म करने वाला. Nishkam bhav is without any trishna, without any desire. We have explained it in great detail. निष्काम भाव से कर्म करने वाला कर्म योग केवल स्वरूप से कर्मों का त्याग करने वाले से अथवा, now this is important, सकाम भाव से कर्म करने वाले से ही श्रेष्ठ नहीं है. So he is not only निष्काम भाव. हम वर्क हार्ड कहते हैं ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, चैप्टर 2 में आता है. He is saying again and again, it is being elaborated over here, without any anticipation of any result. The person who works with this thought in his mind, he is doing the work for the sake of doing the work, right? Without any attachment, आसक्ति to the work also. आप किससे, हम सोचते हैं कि आसक्ति, attachment is only to the result. No, we discussed last time that attachment to the work also happens. We get so attached to the work that we are doing that it is very difficult not to do it. So हमें आसक्ति कर्म फल से भी नहीं रखनी है और कर्म से भी नहीं रखनी है, right? बस हमें कर्म करने के लिए कर्म करना है, right? So what he is saying is, निष्काम भाव से कर्म करने वाला कर्म योगी, that person who is doing कर्म as a निष्काम भाव is a कर्म योगी. हम कई लोग बोलते हैं मैं तो कर्म योगी हूं. कर्म योगी बड़ा मुश्किल है. यहां पे इन द नेक्स्ट फेज ही इज सेइंग प्रत्युत ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ है ये. नॉट मी, गीता में राम सुखदास जी बोल रहे हैं कि ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ कर्म योग है अगर आप उसको निष्काम भाव से करें तो, राइट? एंड व्हाट इज ही सेइंग? इट इज नॉट ओनली श्रेष्ठ कि आप स्वरूप से, केवल स्वरूप से कर्म कर रहे हैं या स्वरूप छोड़ के कर्म कर रहे हैं, सकाम भाव से कर रहे हैं, वेर यू आर निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इट इज सुपीरियर टू doing something with expectation. It is definitely superior to doing something with intentions of getting something in return. Nishkam bhav is superior, but the most important point is ये ज्ञान योग से भी कठिन है, ये ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ हो जाता है. And we have clearly said in the very beginning, every path is beautiful, every path is important, but none of the paths are mutually exclusive, right? And we explained this very simply with the example of a story. ज्ञान योगी, कर्म योगी, हठ योगी साथ में जा रहे थे, and they would never see eye to eye. They would fight as to which one is superior, which one is not, and they were caught in a storm, and in the middle there was a shivling. The roof blew off, so छाया लेने के लिए इतनी सी छत बची थी जो शिवलिंग के ऊपर थी. So for the first time and forever, they hugged the shivling. In the process, they joined hands with each other. ना, एक दूसरे को छू लिया, एक दूसरे के से एक हो गए और शिव जी प्रकट हो गए. तो जब शिव जी प्रकट हुए तो दे आस्क्ड कि प्रभु, आई फॉलोड ज्ञान योग, आई फॉलोड कर्म योग सो स्ट्रांगली, आई फॉलोड हठ योग, यू नेवर केम. बोले यस, बिकॉज यू नेवर रियलाइज दैट ऑल थ्री आर इंटरलिंक्ड. One leads to the other. One is not complete without the other. So when we are saying कि ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ है, इसका मतलब ये नहीं कि we are condemning something and uplifting something. One leads to the other leads to the other. We are just clearly saying कि कर्म योग is very important. And कर्म योग से ही शायद हमारी शुद्धता आती है और ज्ञान उजागर होने लग जाता है. We know, right? We are all knowing. ज्ञान बाहर से नहीं आता, हमें पता है ना. हम सच्चिदानंद स्वरूप है, वी स्टार्टेड दैट वे. तो सच्चिदानंद स्वरूप है, हम ब्रह्मासि तत्त्वमसि. ज्ञान तो यहाँ है ही, उसको बस प्रकट करना है. वो प्रकट नहीं हो रहा है क्योंकि इट इज कवर्ड विद अ लॉट ऑफ वाइसेस, ब्लैंकेट्स एंड ब्लैंकेट्स ऑफ वाइसेस, राइट? तो जैसे ही हम कर्म योग के द्वारा ये सारे चीजें हटाते हैं, सेल्फलेस होते जाते हैं, लविंग होते जाते हैं, निष्काम भाव से आगे बढ़ते जाते हैं, ऑटोमेटिकली ज्ञान उजागर हो जाएगा. We are ज्ञान, we are सच्चिदानंद स्वरूप, we are the all-knowing bliss. हमें कौन क्या सिखाएगा और क्या बताएगा? See? So, this is what they are saying, कि this is how you should work, and this is not a request, Shri Krishna is saying. Shri Krishna is saying, this is the order. This is my order.
स्वधर्म तुम नहीं छोड़ सकते, कर्म करो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।